जरीना बेगम गुलदस्ता पेश करेंगे दीन साहब की खिदमत में। नुसरत सलमा गुलदस्ता पेश करेंगी प्रोफेसर बेग एहसास साहब की खिदमत में। प्रोफेसर बेग साहब joined the university in 1986. He has been a teacher for more than 30 years, published widely in major aspects of English language and literature, supervised research, etc. And he is a great teacher. I request him to please come on to the mic. Professor P.C. Sadiki, distinguished guests, Ms. Megan Montino, Dr. David Matthews, Professor Sadiq Rahman Roy, friends and colleagues. It's my privilege to say a few words to welcome you to this function commemorating Ralph Russell. Russell Sahab, as you know, is always remembered as an amazing scholar and lover of India and Urdu, a true humanist and dedicated teacher whose passion for classical and medieval India matched his enormous interest in advancing Urdu studies in India and many parts of the world. At the School of Oriental and African Studies, where Russell Sahab taught for about 30 years, his emphasis was on understanding two major cultural worlds, India and the West, through languages, translation and multicultural initiatives. On behalf of the School of Humanities and especially on behalf of Professor Mohan Ramanan, the Dean, it is my pleasure to congratulate the Department of Urdu, especially Professor Muzafar Shamili, the coordinator of the seminar. The School of Humanities is a vibrant cluster of language and philosophy departments and centers, one whose life is sustained by English and the many Indian and foreign languages into which and from which English itself draws sustenance. So it's most appropriate that the seminar on Ralph Russell begins with the release of two books. The first by Ralph Russell, whose losses and gains is the second part of his autobiography. Languages and philosophical traditions grow by such interaction and dialogue. The School of Humanities is very proud of Urdu and the departments with which it creatively interacts to bring forth excellent work by its faculty and students. I shall take only just another minute to propose two initiatives the Department of Urdu and the university might seriously consider. So this is a proposal that I want to put forth before this August Assembly, especially in the presence of our Pro Vice Chancellor, Professor Sarangi. I say this because we have with us two of our distinguished administrative heads, Professor Ehsan, the head of the department, and Professor Sarangi, the PVC, who might discuss this with our Dean when he returns. It strikes me as most opportune and perhaps academically appropriate to institute a named chair, a chair in Urdu Culture and Indian Studies, named after Ralph Russell. I can see no better way to keep alive Russell's exemplary work and scholarship in Hyderabad, a city Russell appears to have loved and cherished so much. The second proposal again relates to Russell's life and work. The Department of Urdu and the university would begin to look for grants to build an archive of historical and cultural material on Dakhini Urdu and the Indian languages. Funds are for the asking, I think, if we approach the right institutions and individuals. I shall leave you now with these ideas and once again welcome you all to this 3-day international seminar. Let me wish Shamili Sahab and his fellow coordinators, Dr. Rizwana Moin and Dr. Arshia Jabin, all success in this endeavor. Thank you very much. Thank you very much, sir, especially for your proposals. We'll think it once.
मैं आप गुजारिश कर रहा हूँ हमारे सदस्यों प्रोफेसर बेग एहसास साहब से कि वो खुतबा इस्तक़बालिया मरहमत फरमाएँ। प्रोफेसर बेग एहसास का मुख्तसर तारुफ ये है कि प्रोफेसर बेग एहसास सदर शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक मारूफ अफसाना निगार हैं। 1970 के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में आपने एक नुमायां शनाख्त बनाई है, लेकिन बहैसियत नक्काद भी उन्हें कद्र की निगाह से देखा जाता है। हिंदुस्तान भर के जामियात और अहम कौमी व बैनुल अक़वामी सेमिनारों में उन्हें मदऊ किया जाता है। वो मुख्तलिफ अदबी व तंजीमी अंजुमनों और सरकारी व गैर सरकारी इदारों के मेंबर हैं। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के उर्दू मुशावरती बोर्ड के रुकन 2 बार मुंतखब हुए। इस वक्त माहनामा सबरस हैदराबाद से आप मुदीर हैं और उन्हें ज़राए इब्लाग से भी गहरी दिलचस्पी है। आप उनका इस्तक़बाल कीजिए। प्रोफेसर बेग एहसास साहब। सिद्दीकुर रहमान किदवाई साहब, मेहमान खुसूसी डॉक्टर डेविड मैथ्यूज जो आज कीनोट एड्रेस पेश करेंगे, मोहतरमा मैरियन मैरेंटिनो, प्रोफेसर के नारायण चंद्रन, इंचार्ज डीन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, प्रोफेसर मुजफ्फर शहीदी साहब, कोऑर्डिनेटर सेमिनार, और शहनशीन से के अलावा इस हाल में बैठे हुए मौजूदी जनाब सत्तार दलवी साहब, जनाब अनवरुद्दीन साहब, होशन मर्जेंट साहब, अर्जुमन आरा साहबा, अबू बकर इबाद साहबा, अबू बकर इबाद साहब माफ करना, और रऊफ खैर साहब और दूसरे मौजूदीन ख़वातीन हज़रात। जो खुतबा इस्तक़बालिया था वो प्रोफेसर के नारायण चंद्रन ने स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ की जानिब से अभी आपके सामने पेश किया और मैं आप लोगों का खैर मक़दम कर रहा हूँ। और ये खुतबा नहीं है, एक खुलूस खैर मक़दम है। अभी मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि खुतबा पेश करूँ। अभी तो मुझे मोहब्बत से आप लोगों का इस्तक़बाल करने की इजाज़त दीजिए। मुझे इस बात की खुशी है कि शोबे उर्दू हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने इस 2-4 बरस के अरसे में इंटरनेशनल सेमिनार्स किए। हमने रूमी पे इंटरनेशनल सेमिनार किया, इंशाइये पे इंटरनेशनल सेमिनार किया और अब ये राफ रसल पे इंटरनेशनल सेमिनार कर रहे हैं। ये हौसला हमें इसलिए भी मिलता है कि यूनिवर्सिटी का इंतज़ामिया तमाम शोबेजात को एक नज़र से देखता है, चाहे वो स्कूल ऑफ साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, कोई भी स्कूल हो, सबको एक नज़र से देखते हैं। वाइस चांसलर साहब डॉक्टर एहतशाम हसनैन का हमारे साथ बेहद ताउन है और साथ ही दोनों प्रो वाइस चांसलर्स, रजिस्ट्रार और सारा इंतज़ामिया उर्दू डिपार्टमेंट से एक ख़ास किस्म की मोहब्बत रखता है, जिसका सबूत आपको नारायण चंद्रन साहब की तकरीर से मिला कि किस तरह उन्होंने अपनी अपनाइयत से शोबे के लिए 2 प्रपोज़ल पेश किए। और ये प्रपोज़ल पेश करना खुद इस बात की दलील है कि उन्हें शोबे पे पूरा भरोसा है कि जो भी वो प्रपोज़ल रखेंगे हम उसको बखूबी अंजाम देंगे। मैं उनसे इस बात का वादा करता हूं कि जिस तरह की हौसला अफजाई उन्होंने फरमाई, हम उनको मायूस होने नहीं देंगे। आर्काइव्स का प्रपोज़ल हमने हमारे पास पहले से मौजूद है। हमने SIP का एक प्रपोज़ल दिया था जिसमें तकनीक सेंटर की बात की थी, उसे हम यहाँ एक तकनीक सेंटर कर पाएंगे। गज़ल के सिलसिले में भी हमने प्रपोज़ल दिया था इससे पहले कि गज़ल की टीचिंग या गज़ल का एक गज़ल गायकी के सिलसिले में, तो मेरा ख्याल है इतने कम फासले पे 2 डिप्लोमा चलें ये किसी तरह से मुनासिब नहीं है। ये काम हम उर्दू यूनिवर्सिटी के ज़रिए से करवा लेंगे और हम मुतमईन हैं कि उर्दू यूनिवर्सिटी भी एक बात है। आदमी अगर डॉक्टर अगर इस ख्याल से ऑपरेशन करना छोड़ दे
कि उसका किसी घर महरम को हाथ लगाना बारी है क्षमा रोशन करने की। और मैं मैलियन मकन साहबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो क्षमा रोशन करके इस सेमिनार का बाकायदा इफ्तिताह फरमाएं। बेहद शुक्रिया मैडम साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे साहबा ने क्षमा रोशन की तो एक शेर याद आ गया। सूरज समझ के सारे परिंदों ने गुल किया, सूरज समझ के सारे परिंदों ने गुल किया, उसने जलाई शम्मा तो मंजर चाहे उठे। सूरज समझ के सारे परिंदों ने गुल किया, उसने जलाई शम्मा तो मंजर चाहे उठे। थैंक यू। क्षमा रोशन हो चुकी है। आइए इसकी रोशनी में हम इस सेमिनार के अगराज और मकासद को देख लें और ये फरीज़ा अंजाम देने के लिए खासा आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि अभी प्रोफेसर बेगैसा साहब ने कहा कि हम यकीनन खुशनसीब हैं कि ये बैनुल अक़वामी सेमिनार हम हैदराबाद में कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कर रहे हैं और शोबे उर्दू से कर रहे हैं। मेरी महदूद मालूमात के मुताबिक एक आध जलसा लंदन में हुआ था 28 जून 2007 को रॉब रसल साहब की हयात में। ये वो गालिबन एक रोजा जलसा था और एक आध जलसा जामिया मिलिया में हुआ था उनके इंतकाल के बाद, एक मुख्तसर सा, जैसा कि उनके दोस्त सजा साहब ने मुझे बताया फोन पर। इन जलसों के अलावा हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में कुछ अदबी रसायल ने उन पर नंबर निकाले, घोषे निकाले। मसलन हमारी जबान ने रॉब रसल नंबर निकाला, अदबसाज दिल्ली ने एक घोषा छापा और पाकिस्तान के जहाजसू ने भी एक घोषा छापा था। इनके अलावा कई मज़ामीन रॉब रसल पर उर्दू में छपे। मगर मुझे महसूस हो रहा था कि ये जो कुछ है, उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है, उसका एतराफ में ये उसका आश्रय शीर भी नहीं है। बहुत काम होना चाहिए। तो हमने सोचा, मैंने और हमारे शोबे के रुफ्तार कार में कि बैनुल अक़वामी सेमिनार किया जाए, लिहाजा हम आपके सामने हाजिर हैं। जहां तक अगराज और मकासद का ताल्लुक है, एक जुमला मैं कहूंगा कि रॉब रसल ने उर्दू जबान की बेलौस खिदमत की है और मेरे इस जुमले के 3 कलीदी लफ्ज हैं: रॉब रसल, उर्दू जबान अदब और बेलौस खिदमत। रॉब रसल ने अपनी जवानी में उर्दू सीखी जब वो यहाँ एक फौजी की हैसियत से आए
दस्तूर जमाना के मुताबिक उर्दू सीखी। जब वापस लंदन गए तो यहाँ की खुशबुओं के साथ, यहाँ की बहारों के साथ, यहाँ की मोहब्बतों और चाहतों के साथ उर्दू पढ़ने का शौक भी वो लेकर लंदन गए। फिर वहां उन्होंने उर्दू पढ़ी, उर्दू सीखी और गालिबन किसी वक्त एक ऐसा लम्हा भी आ गया जब वो गिरते उर्दू के कुछ इस तरह असीर हुए कि अपनी सारी जिंदगी उसके नाम लिख दी और उम्र भर उर्दू की खिदमत करते रहे। उर्दू जबान की तदरीस व इशाअत और तशहीर के लिए उन्होंने किताबें लिखी, निसाब बनाए, असातिज़ा की तरबियत की मुख्तलिफ तरह से। मैं अभी कल मैरियन साहबा से बात कर रहा था तो उन्होंने एक बात बताई कि ग्रुप टीचर के मुकाबले में वो एक से एक को पढ़ाने में यकीन रखते थे। मतलब है कि जिस तरह का शागिर्द है उसकी सतह पे उतर कर पढ़ाते थे। हज़रत इमाम गजाली की बात याद आई मुझे कि अच्छा उस्ताद वो है जो शागिर्द की सतह पे उतर कर उससे बात करता है, ये नहीं कि जो बातें कही जाएं वो उसके सर पर से गुजर जाए। राम प्रसाद की खास बात ये थी कि जो कुछ उन्होंने पढ़ाया वो सतह पे उतर कर पढ़ाया। ये सिलसिला जारी है। हमारे सामने इस वक्त डेविड मैथ्यूज साहब बैठे हुए हैं, हासिन दलवी साहब जिसे उर्दू सीखने का शौक है। हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। ये सिलसिला जारी है। जहां तक अदब का ताल्लुक है, राव प्रसाद ने उर्दू का जो बेहतरीन सरमाया हो सकता है, बेहतरीन सरमाया हो सकता है, उसको उन्होंने अंग्रेजी में मुंतकिल किया। गालिब पर उनका कलाम, गालिब पर उनका तर्जुमा, उसकी तशरीह बेमिसाल है। मैं आपको बताऊं कि भूटान के एम्बेसडर इस वक्त पीके वर्मा साहब हैं। मैंने उनको दावत देने के सिलसिले में फोन किया और मैंने उनसे कहा कि रात पर हम एक सेमिनार कर रहे हैं, तो चौंके वो। अच्छा, वो गालिब के ये पहचान है राम फसल की। एम्बेसडर साहब ने कहा कामयाबी यकीनन उर्दू वालों की कामयाबी है, हम हिंदुस्तानियों की कामयाबी है। गालिब के अलावा राम प्रसाद ने मीर तकी मीर का तर्जुमा किया, मीर हसन का तर्जुमा किया, अजीज अहमद का तर्जुमा किया। इसके अलावा कई और लोग, फैज अहमद फैज, प्रेमचंद, जो बेहतरीन सरमाए अदब उन्हें नजर आया उन्होंने उसको उर्दू में अंग्रेजी में मुंतकिल किया। मुझे एक बात याद आ रही है, वो ये कि हिंदुस्तान में कई अंग्रेज आए, उर्दू सीखी, उर्दू में लिखा, उर्दू में शायरी की और बीबीसी लंदन के रिपोर्ट के मुताबिक सब्जेक्ट टू करेक्शन की अहमियत भी ज़ाहिर होती है। और इस तरह उर्दू की खिदमत यूं की कि इसको हिंदुस्तान से बाहर निकालकर यूरोप तक पहुंचा दिया। ये सबसे बड़ी खिदमत हुई। आज शायद हम उन शायरों को याद न करें, लेकिन रहती दुनिया तक शायद रात को लोग याद रखेंगे। जहां तक उनकी बेगर्जी का ताल्लुक है कि उन्होंने, मैंने कहा अपने जुमले में कि बेलौस खिदमत की है। असल काम तो वही होता है जिसमें बेगर्जी होती है। जहां गरज आई वहां लोग समझ जाते हैं कि इसमें कुछ खामी आ गई है। वो दिखाई ना दे, लेकिन दिखाई देती है, पोशीदा होती है। उन्होंने बेगर्ज खिदमत की। थोड़े शायराना अंदाज में अगर मैं कहूं तो उन्होंने गुलाब को देखा, पसंद किया, उसे पूजा, उसकी परस्तिश की, उसे चाहा, उसे मोहब्बत दी, लेकिन उसको तोड़ा नहीं, निचोड़ा नहीं, इत्र नहीं बनाया और इत्र फरोशी नहीं की उसने। यह उसका कमाल था। जो क्या बेलौस होती किया, बेलौस होती किया, और शायद इसीलिए आज हम उसे याद भी करते हैं। तो ये रहे दो चार बातें
गरज के ताल्लुक से कि हम किस गरज से कर रहे हैं। जहां तक मकासद का ताल्लुक है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं इस सेमिनार से, तो सिर्फ दो बातें मैं अर्ज करूंगा। वो एक कि सबसे पहली बात तो यह है कि चलो जिक्र यार होता रहे, कुछ बातें आम लोगों तक पहुंचे, और इंशाअल्लाह अगर हम इन मकालात को शाया कर सकें तो बहुत दूर दूर तक इस बात की हम इशारत कर सकेंगे। एक मकसद तो हम ये हासिल करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है, और बहुत अहम बात है, हमें देखना चाहते हैं कि एक गैर उर्दूदार अंग्रेज ने उर्दू को कैसे देखा है, उर्दू जबान को कैसे देखा है, उर्दू अदब को कैसे देखा है, उर्दू तहजीब को कैसे देखा है, हिंदुस्तानी तहजीब को कैसे देखा है, और बड़े पैमाने पे हम सोच के देखते हैं कि उसने एशिया की तहजीब को कैसे देखा है, क्योंकि हमारे पूरे खतरे अलग अलग हैं। हम देखना चाहते हैं कि उसने क्या लिखा है। साहिल का दूसरा किनारा हमेशा बड़ा दिलचस्प होता है, क्योंकि आप साहिल पर से जाएं, वहां से आप अपने शहर को देखिए तो एक अजीब तरह का लुत्फ मिलता है। जरा हम भी देखें कि राउत रसल ने दूसरे किनारे से हमको कैसे देखा है, उस किनारे से कैसे हम दिखाई देते हैं। जरा देख तो ले, बहुत से मकाले हमारे पास ऐसे पढ़े जाएंगे जिसमें ये सारी बातें उभर कर आएंगी, उजागर होंगी। एक अर्जुमन ने हमसे सवाल पूछा कल कि आपको ये ख्याल कैसे आया। आपने ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने पूछा, कुछ लोगों को अजीब भी दिखाई दिया। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं भी अपनी बात जाती तौर पर अर्ज कर रहा हूं कि लंदन के ख्याल के दौरान हमारे कासिम नकवी साहब के घर में अक्सर औकात में गाल की किताबें देखता रहा, क्योंकि उनसे बहुत करीबी ताल्लुकात थे। भाभी साहिबा हमारी यहाँ हैं, उनकी बेटी थी। इन सब लोगों से उनकी बातें सुनते हुए मुझे जो तसव्वुर उभर रहा था, वो एक अजीब का नहीं, एक मुतरज्जिम का नहीं, बल्कि एक अजीम इंसान का तसव्वुर उभर रहा था। और इस जमाने में, इस तहतुर रिजाल में, एक अजीम इंसान की याद मनाना बहुत जरूरी है। और एक इतना बड़ा काम कोई वही कर सकता है जिसके अंदर वक्त और बहार होता है, वही शख्स ये काम कर सकता है बेलौस होकर। पहले खैर एक खलील जिब्रान की नज़्म याद आ रही है, मैं वहां के गोशेगुजार कर दूं और अपनी जगह लूंगा। ये नज़्र है खलील जिब्रान की नज़्म रात फसद के लिए। खलील जिब्रान लिखता है कि मैं तालाब के किनारे बैठा हुआ तालाब में कंकर फेंक रहा था। मैं तालाब के किनारे बैठा हुआ तालाब में कंकर फेंक रहा था